Thank you. Lily. Good morning, students. Good morning to all. I hope you know the objective of today's assembly. Today we are celebrating Indian Organ Donation Day. Organ Donation Day is celebrated in a different manner. It is National Organ Donation Day, World Organ Donation Day, but in India it is separately celebrated as Indian Organ Donation Day. As Gargi told you, as you know, in our body there are different organs which are working day and night. Good morning, everyone. We all have gathered here for the workshop on IPR, that is Intellectual Property Rights. And we have with us our speaker, Mr. Nirmalya Sinha sir, for this workshop. I request our principal ma'am to welcome sir with sapling. So, Organ Donation Day gives you a message that after death you can donate. Thank you, ma'am. Now I request our Vice Principal ma'am, Mrs. Anita Samudra ma'am, who is SPOC for our School Innovation Council, to introduce sir. Good morning, children, and the dignitaries on dais, and my dear teachers. Kindly take your seats. Only human body is the source of organs. Today we are having with us the eminent speaker of IPR, Nirmalya Sinha. Sir is working for more than 19 years in Central Government Office under the Patent Office, Ministry of Commerce and Industry, and presently working as Joint Controller of Patent and Design and Head of Office in RGN-IIPM Nagpur, which is only Central Government National IPR institution in India. He has done BE Electronics from Nagpur University in 2001, MTech Material Engineering from Jagatpur University, Calcutta in 2004. He has done 1 year executive program in business management in 2006 from IIM Calcutta. Joined the Patent Office in the year 2002 as Examiner of Patent and Designs, Group A Gazetted Officer. Promoted to Assistant Controller of Patent and Design in Patent Office Delhi in Jan 2009 and shifted to Patent Office Kolkata in May 2011 as Group Leader of Electrical Group. He was promoted to Joint Controller of Patent and Design in RGNIIPM, Nagpur, and joined here on 24th November 2021 as Head of Office. He has knowledge of foreign languages like French. He has delivered many lectures on IPR in various parts of the country also. He was deputed twice for training at European Patent Office, Hague, the Netherlands, and at World Intellectual Property Organization, Geneva, Switzerland, on examination and CDIP issues respectively. Sir, we are very fortunate to have you as a speaker for IPR today. Welcome to you, sir. Thank you. Thank you, ma'am. Now I request sir to please start with the workshop. चेंज अगेन एंड मेरा और एक परिचय है, वो है कि मैं श्रेष्ठा की पापा हूँ और वो क्लास 7 में पढ़ती है इसी स्कूल में. एंड आई एम वेरी फॉर्चुनेट दैट द अथॉरिटीज़ छाया मैडम एंड डॉक्टर अनीता, your vice principal, had permitted me to take this workshop on IPR, and I believe all of you will be benefited with this workshop.
ये वर्कशॉप जो है IPR जो है वो एक बूमिंग फील्ड है and it opens many opportunities before you for students. Okay, so even if you are in the science discipline particularly, then you can be an expert in patent आप लोगों ने सुना है, वो है एकस्वा बोलते हैं, that is a type of monopoly right. हाँ, तो इस पे अगर आप थोड़ा जानना चाहते हैं तो वी विल गिव यू अ इंट्रोडक्शन इन टुडेज प्रोग्राम. आई myself come from the Institute of राजीव गांधी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मैनेजमेंट, जिसका ऑफिस है इधर सिविल लाइंस में नागपुर में. उधर मेरा पोस्टिंग पिछले साल हुआ है इधर एज हेड ऑफ ऑफिस. और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग ट्रेनिंग प्रोग्राम्स कंडक्ट करते हैं. Today's program is the NEPAM as a part of NEPAM program, that is the National Intellectual Property Awareness Mission. तो इस प्रोग्राम के तहत हम लोग स्कूल्स को अप्रोच करते हैं, इंस्टीट्यूट्स या कॉलेजेस को अप्रोच करते हैं, जहाँ पे हम लोग प्रोग्राम करते हैं. और प्रोग्राम के ज़रिए हम लोग ये IPR का ज्ञान जो है वो बांटते हैं. क्योंकि IPR के बारे में जानना हमारे भारतीय लोगों के लिए बहुत आवश्यक है, और इससे जो स्टूडेंट का जो ये है उसको पता चलता है कि आगे क्या करना है, बिकॉज मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज आर ओपन बिफोर यू विद IPR. सो what is IPR? IPR is an exclusive right given to a person over the creation of their mind for certain period of time. ये एक मोनोपोली राइट है जो आपको दिया जाता है. गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपको अवार्ड करता है अगर आपके पास कोई इन्वेंशन है तो. जैसे कि आप मेनी स्कूल्स हैव अटल टिंकरिंग लैब विद देम, सो देयर दे डू सम वर्क इन रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट. तो वो लोग कुछ डेवलप करते हैं, तो वो डेवलप करने के बाद अगर वो आविष्कार है या इन्वेंशन है तो उसको वो रजिस्टर कर सकता है गवर्नमेंट के पास. इन रिटर्न the government will award you with the monopoly right if certain conditions are complied with. What are those conditions? I will come in my following slides. और ये एक लीगल राइट है, ये मोनोपोली राइट जो है ये एक लीगल राइट है और इंटेंजिबल है. क्योंकि ये मोनोपोली राइट है तो इट इज़ एन इंटेंजिबल एसेट. इट इज़, सपोज आप लोगों को वाकिफ है कि टेंजिबल एसेट क्या होता है, गोल्ड, सिल्वर, ज्वेलरी, या आपका जो रियल स्टेट मतलब फ्लैट, बिल्डिंग्स, लैंड, प्रॉपर्टी, तो ये है टेंजिबल प्रॉपर्टी. इन कॉन्ट्रास्ट टू दैट इंटेंजिबल प्रॉपर्टी कुछ है जिसके हम लोग बोलते हैं, जो इस मोनोपोली राइट के तहत हम लोग माने गवर्नमेंट अवार्ड करता है, और इसको हम इट इज़ एज गुड एसेट एज अ टेंजिबल एसेट. क्योंकि इसको भी हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं, एग्रीमेंट एग्जीक्यूट कर सकते हैं. जैसे कि लैंड या बिल्डिंग के लिए हम लोग एग्रीमेंट एग्जीक्यूट करते हैं, उसी तरह इसके लिए भी इंटेंजिबल राइट एसेट के लिए भी मोनोपोली राइट के लिए भी हम लोग एग्जीक्यूट कर सकते हैं एग्रीमेंट. तो इट इज़ अ मोनोपोली राइट एंड मोरओवर इट इज़ अ नेगेटिव राइट बिकॉज इट इज़ एक्सक्लूसिवली अवॉर्डेड टू यू. तो आपने अगर कोई आविष्कार किया है, आपने अगर कोई कुछ बनाया है जो नया है, द 3 conditions are newness, inventive step and industrial applicability. So these are the 3 conditions. So these 3 conditions have to be satisfied under the Patents Act 1970. Only then we will award you with a patent. We will award you with the monopoly right. तो ये एक नेगेटिव राइट है बिकॉज यू कैन एक्सक्लूड अदर्स फ्रॉम मेकिंग, यूजिंग, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूटिंग द इन्वेंशन. और सिर्फ आप ही कर सकते हैं, कोई और नहीं कर सकता. और इसका एक ड्यूरेशन होता है दैट इज फॉर अ पीरियड ऑफ 20 years फ्रॉम द डेट ऑफ फाइलिंग ऑफ द पेटेंट एप्लीकेशन. नेक्स्ट प्लीज.
तो ये मोनोपोली राइट क्यों अवॉर्ड किया जाता है? क्योंकि इससे हम लोग आपको इंसेंटिव मिलता है, आपको एक इनकरेजमेंट मिलता है, ताकि आप नए से नया आविष्कार या रिसर्च करते रहें और सोसाइटी को एट लार्ज the first thing you have to do is to identify a problem which you are facing or which one is facing in day-to-day life. उसके बाद आपको एक सॉल्यूशन ढूंढना है, एक नया सॉल्यूशन ढूंढना है। उस सॉल्यूशन जो आप ढूंढेंगे दैट शुड बी आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग। सो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग करके आपको एक नया सॉल्यूशन ढूंढना है जो दैट शुड सेटिस्फाई द 3 कंडीशंस, दैट इज न्यूनेस, इन्वेंटिव स्टेप एंड इंडस्ट्रियल एप्लीकेबिलिटी. So these 3 conditions should be satisfied, only then you will be awarded with a patent right by the government of India. So इसके लिए पेटेंट स्पेसिफिकेशन बनाना पड़ता है रिसर्च के दौरान। जब आप प्रोडक्ट जो डिज़ाइन कर रहे हैं उस पर एक स्पेसिफिकेशन बनाइए, एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन दीजिए, उसका ड्राइंग्स दीजिए और उसके बाद क्लेम्स लिखिए। क्लेम्स क्या होता है? क्लेम्स होता है इट इज़ अ बॉडी where you draft the exact nature of right which you want, where you want the monopoly. तो वो आपको डिमार्केट करता है कि कहाँ आपको मोनोपोली चाहिए, तो उस बेसिस पे आप वो मोनोपोली वो आप फाइल करते हैं हम लोगों के पेटेंट ऑफिस में। चूँकि नागपुर रीजन वेस्ट इंडिया में है या सेंट्रल इंडिया में है, जो कि महाराष्ट्र में आता है और वो मुंबई पेटेंट ऑफिस के अंदर आता है, तो मुंबई पेटेंट ऑफिस में आपको जो पेटेंट एप्लीकेशन है वो फाइल करना पड़ता है, जो आप इलेक्ट्रॉनिकली भी फाइल कर सकते हैं या फिजिकली भी फाइल कर सकते हैं। तो इन दिस वे you have to make a complete specification, you have to file the application form 1, application form 2 is the complete specification, and then you, along with drawings and claims, you have to file with the patent office Mumbai. Now after you file, it will be taken up for publication. I am going to that procedure later. To identify, क्यों हम लोग करते हैं? To identify genuine and original product. तो वाई IPR इज़ इम्पॉर्टेंट, कि जैसे कि आप सोचिए ट्रेडमार्क है कोई भी प्रोडक्ट, जैसे कि आप सुबह दूध लेने जाते हैं दुकान से, तो उधर आप अमूल का दूध चाहिए, आप बोलते हैं अमूल। क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो उसका मालूम है आपको कि दैट इज़ अ बेंचमार्क ऑफ क्वालिटी. So you know the products from Amul has a particular quality. That is why you ask from the shopkeeper that please give me a अमूल मिल्क पैकेट, आधा किलो अमूल मिल्क पैकेट दे दो, तो वो आधा लीटर, तो ये आपको देता है। तो अकॉर्डिंगली आप अमूल के बजाय अगर शॉपकीपर ऑफर करता है आप मदर डेयरी ले लो, तो आप बोलते नहीं मुझे अमूल ही चाहिए। तो इस तरीके से यू आर ब्रांड कॉन्शियस, यू आर कॉन्शियस अबाउट द ब्रांड, you know that it is associated with a particular quality, you have received feedback from your mom that it is good, it is the Amul milk is better, that is why you are conscious about it, the brand. That is the trait of trademark, and trademark is also a form of intellectual property. तो इसको कोई भी ब्रांड, स्लोगन, टैगलाइन, कैचलाइन, इसको हम लोग ट्रेडमार्क के अंदर कैटेगराइज करते हैं। तो वो आपको ट्रेडमार्क क्या करता है? इट अलाउज यू टू डिस्टिंग्विश द गुड ऑफ वन ट्रेडर फ्रॉम दैट ऑफ अदर ट्रेडर। तो ये आपको आइडेंटिफाई करने में हेल्प करता है, सहायता करता है कि कौन सा जेन्युइन प्रोडक्ट है। तो न्यू एंड एक्साइटिंग इन्वेंशंस या न्यू डिज़ाइन, कोई नया डिज़ाइन आपने लॉन्च किया है, कोई कार है, कार का डिज़ाइन आपने लॉन्च किया है, या कोई बॉटल का डिज़ाइन लॉन्च किया है, या कोई मोबाइल का डिज़ाइन लॉन्च किया, तो कोई भी डिज़ाइन क्या होता है? एक नया चीज़ जो होता है, एक नया चीज़ को नया डिज़ाइन देने का। डिज़ाइन का मतलब है सिर्फ एक्सटर्नल अपीयरेंस, उसके साथ कोई फंक्शन का रिलेशन जनरली नहीं होता है। तो डिज़ाइन और एक फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है। पेटेंट एक फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो कि इन्वेंशन के लिए दिया जाता है। डिज़ाइन एक फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो कि बाहरी दृष्टि
दर्शन के लिए दिया जाता है, जैसे कैसा दिखता है, द एस्थेटिक लुक ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग। और ट्रेडमार्क एक फॉर्म ऑफ इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जो कि ट्रेड नेम या स्लोगन फॉर द टू आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द मार्केट प्लेस, सो दैट द यूजर कैन आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट इन द मार्केट प्लेस, इसलिए ट्रेडमार्क दिया जाता है। ऐसा और एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है जिसे हम लोग जियोग्राफिकल इंडिकेशन बोलते हैं। आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों के ये इस हॉल के बाहर एक सौरा आर्ट है। आप सौरा आर्ट कहाँ से है? आप ओडिशा से। तो ओडिशा का जो, तो आप लोगों को मालूम है सौरा आर्ट कहाँ से है। तो सौरा आर्ट का जो जियोग्राफिकल इंडिकेशन है दैट हैज़ बीन लिंक्ड विथ ओडिशा। तो ओडिशा का जो ट्राइबल है वहीं से सौरा आर्ट का ओरिजिन हुआ है। तो इसी तरह अगर हम लोग बोलेंगे कि नहीं ये आर्ट किसी और का है तो आप नहीं मानेंगे, क्योंकि यू वांट टू गिव क्रेडिट, ड्यू क्रेडिट टू द पीपल ऑफ दैट प्लेस फ्रॉम विच वेयर इट हैज़ ओरिजिनेटेड है। तो इसी तरह जियोग्राफिकल इंडिकेशन ये का रजिस्ट्रेशन होता है। जैसे कि दार्जिलिंग टी कहाँ से है? दार्जिलिंग से, ऑफ कोर्स। एंड इट हैज़ अ यूनिक एरोमा एंड क्वालिटी, एंड दैट इज व्हाई ऑल पीपल ट्राई टू परचेज दार्जिलिंग टी वेन एवर दे गो टू अ शॉप। तो और ये जो दार्जिलिंग टी है दिस इज जियोग्राफिकल इंडिकेशन टैग, GI टैग। तो इसको भी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के अंदर ही माना गया है और ये भी एक हमारे ऑफिस के अंडर ही आता है। इट ऑल्सो फंक्शंस अंडर द कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन्स एंड ट्रेडमार्क, CGPDDM के अंदर ये ब्रांच भी आता है, GI। तो फिर it opens up many career opportunities for you students for the IPR. So please, in order to keep you well acquainted with the thing, we have designed this lecture. Next slide. So when you लॉन्च इन्वेंशन, व्हेन यू कुछ बनाया आपने और वो जो बनाया उसके लिए आपने अप्लाई किया पेटेंट ऑफिस के पास। पेटेंट ऑफिस मुंबई में आपने सोचिए इलेक्ट्रॉनिकली फाइल किया वो पेटेंट एप्लीकेशन। तो इन रिटर्न इफ कंडीशंस आर कंप्लाइड विद देन वी विल अवॉर्ड यू विद द मोनोपोली राइट। एक आपको पेटेंट सर्टिफिकेट मिलेगा। तो पेटेंट सर्टिफिकेट में आपका डेट ऑफ पेटेंट लिखा रहेगा, कब से वैलिड है, और उसके बाद आपको मोनोपोली राइट जो है वहीं से काउंट होगा। और ये जो मोनोपोली राइट एक बार मिल गया आपको, इसको आप कॉमर्शियली एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, इसको आप लाइसेंस कर सकते हैं इंटरेस्टेड पार्टीज को। तो आप ये जो पेटेंट राइट है, ये जो एकस्व है, ये मोनोपोली राइट आप किसी से परचेज कर सकते हैं या किसी को सेल कर सकते हैं या किसी को लाइसेंस कर सकते हैं या किसी से एक्सचेंज कर सकते हैं। सोचिए कि आपको ये चाहिए, वो नहीं चाहिए, मगर आपके पास ये है, इस पे पेटेंट है, तो आप किसी डिजायरस पार्टी को अपना पेटेंट ये कर सकते हैं। इन एक्सचेंज यू कैन गेट दैट पर्टिकुलर राइट। तो वंस यू गेट द राइट यू कैन automatically start marketing that product. You can automatically start solely manufacturing. कोई और नहीं कर सकता। अगर किसी और ने किया तो you have every right to file to sue him in the appropriate court of law. You have every right to appeal to apply for infringement petition. You will file in the appropriate law. मुंबई हाई कोर्ट में आपको पिटीशन फाइल करना पड़ता है जिसमें आप लोग इन्फ्रिंजमेंट के लिए अप्लाई करेंगे कि so and so person is copying your invention or imitating your invention without giving you royalty, without taking your permission. क्योंकि आपके पास वो मोनोपोली राइट ऑलरेडी अवॉर्डेड है, तो 20 साल के लिए आपके पास ये मोनोपोली राइट होता है। तो आप कॉम्पिटिटर्स को प्रिवेंट कर सकते हैं कॉपिंग करने से, इमिटेट करने से। कोई आपसे इमिटेट कॉपी नहीं कर पाएगा आपका इन्वेंशन। तो न्यू इनोवेशंस जो रहता है, न्यू आपने जो रिसर्च किया या किसी और ने किया तो आपको उससे खरीदना पड़ता है। तो इसी तरीके से हम लोग इन्वेंशन को प्रमोट करते हैं, इनकरेज करते हैं।
तो इससे क्या होता है, आपका जो पोर्टफोलियो है उसमें एक इट इज़ अ इंडिकेटर ऑफ वैल्यू ऑफ योर, इट एड्स वैल्यू टू योर पोर्टफोलियो। कभी भी आप जाइए, कहीं भी आप CV जो बायोडेटा अगर आप सबमिट करते हैं, उसमें अगर आपने लिखा कि यू हैव ऑलरेडी फाइल्ड अ पेटेंट एप्लीकेशन विद पेटेंट ऑफिस मुंबई और यू हैव फाइल्ड 5 पेटेंट एप्लीकेशन, तो इससे आपका वैल्यू ऑफ योर बायोडेटा इंक्रीजेस अ लॉट। तो आपका जो वैल्यू है, या आप जिस स्कूल से आते हैं या जिस इंस्टीट्यूट से आते हैं, उसका जो मान है, उसका जो लेवल है वो इंक्रीज हो जाता है। आजकल हर इंजीनियरिंग कॉलेजेस में या साइंस कॉलेजेस में फैकल्टीज़ को बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पेटेंट फाइल कीजिए, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा आपको मोनोपोली राइट मिलेगा। और ज़्यादा से ज़्यादा, पहले क्या बोला जाता था, पहले बोला जाता था ज़्यादा से ज़्यादा आप पब्लिकेशन कीजिए, फॉरेन जर्नल्स में पब्लिकेशन कीजिए, तो पेपर्स में पब्लिश करते थे वो लोग। मगर अभी बोला जाता है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप पेटेंट राइट फाइल कीजिए या पेटेंट एप्लीकेशन फाइल कीजिए, रिसर्च कीजिए, क्योंकि पेटेंट इज़ एन इंडिकेटर ऑफ द अमाउंट ऑफ रिसर्च एंड डेवलपमेंट वर्क विच इज़ गोइंग ऑन इन योर ऑर्गेनाइजेशन। तो ये जब आप कॉलेजेस में जाएंगे, हायर इंस्टीट्यूट्स में जाएंगे, हायर लर्निंग करेंगे, तब आपको आपको और इसका इम्पोर्टेंस पता चलेगा। तो ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि ये इससे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट जब हम रजिस्टर करते हैं तो वी अवॉइड डुप्लीकेशन ऑफ रिसर्च, क्योंकि हम लोगों को पता है कि इतना टेक्नोलॉजी बढ़ गया है ऑलरेडी। टेक्नोलॉजी हैज़ एडवांस्ड टिल दिस स्टेज, तो ये वी स्टे अब्रेस्ट विद द लेटेस्ट ट्रेंड ऑफ इन्वेंशन बाय कंसल्टिंग द पेटेंट ऑफिस जर्नल। तो हर वीक हम लोगों के ऑफिस से, पेटेंट ऑफिस मुंबई से 4 ब्रांच होता है। 4 ब्रांच कहाँ कहाँ, चारों कॉर्नर्स में इंडिया का 4 ब्रांच है, कलकत्ता में, चेन्नई में, मुंबई में और दिल्ली में। तो चारों ब्रांच में चारों जगह के जो नॉर्दर्न स्टेट्स है वो दिल्ली में फाइल करता है, ईस्टर्न स्टेट्स कलकत्ता में फाइल करता है, साउदर्न स्टेट्स चेन्नई में, और वेस्टर्न जैसे महाराष्ट्र, गुजरात और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ये लोग मुंबई में फाइल करते हैं। तो इसके बाद जो डुप्लीकेशन ऑफ रिसर्च है उसको हम लोग ये बंद करना चाहते हैं, क्योंकि ये हम लोग जब भी पब्लिश करते हैं तो डुप्लीकेशन ऑफ रिसर्च अकॉर्डिंगली बंद हो जाता है। क्योंकि मोनोपोली राइट रहता है, तो हम लोगों को पता चलता है कि इस आदमी ने जब भी पब्लिश करेंगे जर्नल में, तभी जनरली पब्लिक को नोटिफाई होता है कि ये पर्टिकुलर इन्वेंशन इसने बनाया है। ये पर्टिकुलर इन्वेंशन जब भी पता चलता है कि इसने बनाया है, तो सारे लोग उस फील्ड का रिसर्च